In the previous lecture, we understood that economics is a science. Economics is a science. We will go in detail in this lecture. Actually, what are the types of sciences? So, मैंने बोला economics is a science. It can be a positive science, means giving just a statement, or it can be a normative science, means passing the judgment. Passing the judgment. Try to understand. So, if you are giving a statement, you are being a positive, you are following the positive science. But if you are giving some judgments, you are passing some value judgment, you are making some opinion on the basis of that positive science, you are being, right, normative science. You are being, or you are following which science? Normative science. Positive science deals with the facts. Normative science deals with the judgments and opinions. ठीक है? Then ये हमने देखा था. Now I will take you to the actual meaning of economics and everything. ठीक है? So economics, let me share my screen. Let me share my screen and then we can understand that what do you mean by science and economics falls under which science. ठीक है? Then yeah. हमने थोड़ा देखा था लाइक इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो, कैन बी डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मींस जो पूरा इकोनॉमी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, उसको स्लाइस करना और फिर हर हिस्से को, हर सेक्टर को, हर फर्म को, हर इंडिविजुअल को स्टडी करना, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में we study under macroeconomics, we study the economy in aggregate. To study the jungle is a macroeconomics. To study a tree in the jungle, single tree, tree by tree, tree by tree, it is microeconomics. ठीक है? और भी उसमें हम जाने वाले आज. So let's start. Try to understand there are two types of sciences. फिर इकोनॉमिक्स किसमें बैठेगा वो समझेंगे. फिर इकोनॉमिक्स के दो साइंसेस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. ठीक है? साइंस, साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज. Science is called as body of knowledge. Basically, there are two sciences. There are two types of sciences. There are two types of science, natural sciences and दूसरे होते हैं social sciences. Natural science and total, right? Natural science and social science. So लिख लेना, नोटबुक अलग से रखना, that is very important. Try to understand whatever you will learn here is lifetime. मैंने कल भी शायद से कल मैं कुछ तो रेफरेंस दे रहा था. At that point of time I said economics plays a vital role in your skill setting. You must understand the economics. You must understand the trends. You must understand the events. Because economics helps you to understand that. It may be, for you, it may be subject. It may be like 100 marks, 80 marks. But don't consider it as a marks. Consider it as a knowledge. It's
tremendous knowledge. You will learn many things. You will learn the life, the principles of right wealth, principles of human welfare, principles of money. Economics along with the accounts gives you a like it is a good blend of the knowledge, perfect knowledge. Why economics is in commerce and not in science? Try to understand. Because economics, right, a commerce student must understand the economics not for the exam but for the life. So write down everything very carefully. ये आपको कभी ना कभी फिर से लगेगा. Whatever you do CA, CS, CW, MBA, right, law, कहाँ पे भी जाओ, you have to deal with it. So this is long term in the nature. Try to understand. So right, स्किल सेट्स के लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग द स्किल सेट्स. खाली जॉब नहीं करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं. स्किल करोगे तो कुछ भी करोगे लाइफ में. सो बॉडी ऑफ द नॉलेज, साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस. वन इज नेचुरल साइंस and another is social science. Natural science is like they have universal statements or universal laws. They are always applicable. There are hardly any exceptions. They are carried on in the laboratories. They are experienced under the observations. Empirical approach follow किया जाता है. Empirical approach. Means experience. With your experience, you gain that knowledge. With your experience, with your right study, you understand that. So it is a empirical approach, means it is based on your experience, right? As you gain more and more knowledge, as you gain more and more experience, this science becomes more and more rigid versus flexible. Rigid मतलब ऐसे ही होगा, कुछ दूसरा नहीं हो सकता. Try to understand. So it is, those are natural science. Empirical approach follow करते हैं. Then they are right, you can say universal laws. They are universal in the nature. मतलब irrespective of the place, whether India or some other country, irrespective of the time, it may be summer, it may be winter or rainy season, right? It may be 19th century, 20th century, they remain same, universal in the nature. They are universal in the nature. Like every action has a reaction. Newton's 3 laws everybody knows. Every action has a equal reaction. Suppose उसमें से एक लॉ, आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये कहां पे भी जाओ वो होगा. हाँ, कहीं कोई प्लेसेस पे देयर विल बी लेस ग्रेविटेशन, कोई प्लेसेस पे देयर विल बी हाई डिग्री ऑफ ग्रेविटेशन. तो अकॉर्डिंगली नीचे आने का स्पीड अलग रहेगा, ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी. बट ये होगा, डेफिनेटली होगा. दे आर नेचुरल साइंस, यूनिवर्सल इन द नेचर, एंड दे आर right, they are right, you can say like physics, chemistry, bio, they are natural sciences which you learn till you are 10th. ठीक है, they are more or less accurate. Social sciences are right, they are abstract science. आप इसको बोल सकते हो right, they follow empirical approach and they are exact science.
एग्जैक्ट, दे आर एग्जैक्ट साइंस, मतलब वैसे ही होगा. नेचुरल साइंसेस राइट वैसे ही होंगे. हाउएवर सोशल साइंसेस आर नॉट एग्जैक्ट साइंसेस, दे आर एब्स्ट्रैक्ट साइंस. एब्स्ट्रैक्ट साइंस. Science. They are abstract science. What do you mean by abstract science? Means, right? They depends on the psychology. They depends on the society. We cannot prove them in the laboratory. They cannot be gained with the experience. They changes as the time changes. They changes as the place changes. They are not universal in the nature. So देखो क्या लिखा है. Natural science is the one whose laws are universally accepted and their validity can be tested in the laboratory under control conditions. They are universally accepted and you can verify their facts, right, in the laboratory under control experience. Like COVID-19 की वैक्सीन, वो जो वैक्सीन बनेगी, जो फॉर्मूला रहेगा, that will be a natural science that can be proved with the experiments. And as we are gaining more and more knowledge about the disease, it is making like our scientists and the doctors easy to find out the vaccine. Initially, to find out the vaccine is totally different. Symptoms are changing, and accordingly, the medicine will change, vaccine will change. Try to understand. So that can be experienced. आप कोई लोगों पे जो बीमार लोग हैं, राइट, उन पे हम वो ट्राई भी कर रहे हैं. ह्यूमन ट्रायल्स में वो दवाई आ चुकी है. So it is can be expressed. It can be like experienced. It can be right experience in the laboratory. आप उसको laboratory में टेस्ट कर सकते हो under controlled environment. Natural sciences are called as exact sciences because of their empirical approach. What do you mean by empirical approach? Study based approach. Experience के साथ वो बनता है. Empirical approach. Empirical approach means on the basis of your knowledge, on the basis of your past experience to the study. Mathematics, physics, chemistry are some of the examples of like 1 plus 1, it will be 2 only. 10 plus 1 will be 11 only. That is has to. 10 plus 1 will be 11 only. So it is exact science. So such sciences are called as natural science. Now, social science. Try to understand. Even if you don't understand natural science, still it is good if you're understanding social science, because we are living in a social, we are a social animal, we are living in the society, right? We are working with the people who are a part of the society. If we can understand their nature, we can be more successful, right, than a person who understands natural science but does not understand social science. Try to understand. जिसको social science अच्छे से आता है, who can understand the requirement of his customers, who can understand the requirement of his sellers, and understand the requirement of the society, that person will be more successful than the person who has more knowledge of the natural science. Because we are a social animal. So we must understand the psyche of buyers, sellers, society, government, etc. So social science is called as abstract or behavioral science. Abstract or behavioral science. Okay? Because it is related to the study of human, like study of some or other aspect of the human behavior. Example, psychology related to the mental situation, right? Psychology is related to the mental aspect of the human behavior. Sociology is related to the study of the social aspect of the man, right, as the member of the society. Human behavior can neither be empirically tested, हम उसको laboratory में टेस्ट नहीं कर सकते. Human behavior हम with experience भी नहीं समझ सकते, because humans keeps on changing, their nature keeps on changing, right? हम उसको laboratory में टेस्ट नहीं कर सकते. Human behavior cannot be studied under laboratory. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory.
एक्सपीरियंस के साथ भी हम वो समझ नहीं सकते, बिकॉज पीपल चेंजेस, राइट, विद द टाइम, विद द प्लेस. जो इंडिया में इनडिसिप्लिन है वही बाहर जाके वो डिसिप्लिन हो जाता है. द सेम पर्सन, बाहर के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रास्ते पे थूकेगा, बट दुबई में जाएगा तो थूकेगा नहीं, बिकॉज पता है उधर पुलिस वगैरह आके पकड़ लेके लेके जाएगी, फाइन हेवी रहेगा. तो जो बंदा यहाँ पे कहाँ पे भी थूकता है उधर नहीं थूकता है, यहाँ पे कहाँ पे भी कचरा फेंकेगा उधर नहीं फेंकेगा, बिकॉज उसको हम पता है वहां पे सर्विलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उठा के लेके जाएंगे उसको. तो हिज बिहेवियर चेंजेस व्हेन ही इज इन इंडिया एंड व्हेन ही इज अब्रॉड. दैट इज द रियलिटी. How can you study such behavior with the experience or with the under laboratory? No, it is not possible. So social science cannot be studied empirically or under laboratory approach, right? Hence, the laws of the social science are not universal, but they are only statements of the general human tendencies. So लिख लेना, ये important है. Abstract science or behavior science. बिहेवियरल और बिहेवियर साइंस, ये 5 मार्क के लिए आता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. सो ठीक है, देन नेक्स्ट, नॉट यूनिवर्सल इन द नेचर, इन नेचर, ठीक है. देन cannot be studied, cannot be studied, cannot be studied, right, by using empirical approach. empirical मतलब with experience, हाँ, और under laboratory, under labs. Examples, या मैं डायरेक्टली इकोनॉमिक्स ले देता हूँ. इसमें जो जो एग्जांपल है वही लिखो, बिकॉज टेक्स्ट बुक में जो है वो इंपॉर्टेंट है. एक है आपका, राइट, साइकोलॉजी, दूसरा है उसमें सोशियोलॉजी, एंड तीसरा आएगा इकोनॉमिक्स. लिखो, एवरीवन. राइट, देन साइकोलॉजी, उसके बाद है सोशियोलॉजी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स. ठीक है, आगे. इसमें मैथ्स ले लो. लिख लेना. जो जनरल टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स, एग्जांपल्स वो रखते जाओ, राइट. कंटेंट यू कैन चेंज. देन आगे, नेक्स्ट, देन my voice is breaking. No, I don't think so. सुबह से मैं ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ. Should not be. Then, so it is a body of knowledge. Science is a body of knowledge. There are two types of sciences: natural science and social science. Social science is a abstract science, behavior-based science, right? It is not universal in the nature. It cannot be studied by using empirical approach or under laboratories. Examples are psychology, sociology, and economics. And economics again is divided into two types of sciences: positive and normative. Positive sciences
social science can be divided into two parts, positive and normative. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट यू विल लर्न इन सीए. ये आप सीए में पढ़ोगे. मैं अभी बात छेड़ी है इसलिए मैं समझा रहा हूँ. कुछ ऐसे उसमें हार्ड एंड फास्ट है ऐसे कुछ नहीं है. पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. ठीक है. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. सो बॉडी ऑफ द नॉलेज. ठीक है. देन आगे. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था. What do you mean by economics? Economics is a branch of social science. Economics is a social science. So now what do you mean by economics? Right? Economics do not give you perfect exact laws. You will be learning some of the laws. Law of demand, law of supply, elasticity concept सीखोगे आप. Right? Then you will understand law of consumption given by Lord Keynes. So there are many laws that you have to learn. मैं कुछ example दे रहा हूँ. Law of DMU, law of EMU. These laws are general in the nature. They are not specific in the nature. कि ऐसे होगा, वो exact नहीं है, वो abstract है. They keeps on changing with the change in the person. There are exceptions. So जो social laws होते हैं ना, social science के laws होते हैं, they are general in the nature and they have exceptions. जो natural science के law होते हैं, every action is a reaction, gravitational etc. Those laws, right, have no exceptions. आपने उसमें exception नहीं सीखे थे. Try to understand. तो ये difference है because we are studying the human behavior. Then, what do you mean by economics? Economics can be studied from different point of view. Like there are two types of economics. लिख लेना, बहुत अच्छा concept है. Economist. Some are classical economists and some are neoclassical economics. Neoclassical economist. कोई मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी है, वो नहीं, मुझे इनमें करना है. What do you mean by classical economist? Example. Classical economist assumes that prices of goods and services can be, right, is calculated by adding up right, costs incurred to manufacture or produce or provide them. एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, ध्यान देना. सपोज ये मोबाइल है, इसकी प्राइस क्या रहेगी मार्केट में? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सेज इसकी प्राइस कैसे डिसाइड की जाएगी कि इसके लिए स्क्रीन लगा, स्क्रीन की सपोज एग्जांपल स्क्रीन के लिए 1000 रुपीज, एग्जांपल स्क्रीन के 5000 रुपए, एग्जांपल. फिर इसमें मदरबोर्ड रहेगा उसका 10,000. ठीक है. फिर उसका स्क्रीन कवर वगैरह वो 1000, बाकी सब ऐसे. इस पे किसी ने काम किया होगा, लेबर ने, उसका 5000. ऐसे उन्होंने मटेरियल ऐड कर दिए और बोला ये 40,000 का मोबाइल है. ये मोबाइल 40,000 का है. सो वो जो मोबाइल बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है, जो मटेरियल लगा, जिस बंदे ने काम किया, कोई इंजीनियर काम कर रहा होगा, उसकी सैलरी रहेगी, तो उसकी सैलरी इस मोबाइल के लिए कितनी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके लिए
ऑयल वगैरह यूज हुआ होगा, राइट, वो सब ऐड किएंगे. एग्जांपल फैन है, एग्जांपल देखो फैन, दिस इज अ फैन, एंड दिस इज अ फैन. ठीक है, दिस इज योर फैन. थोड़ा ठीक से निकालता हूं. ये फैन है, तो ये फैन बन, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? क्लासिकल इकोनॉमी सेज इसकी कॉस्ट, सपोज मैंने फैन लिया है, इज द 3 ब्लेड्स. सब एक ब्लेड की कॉस्ट 500 है, तो 3 ब्लेड्स की कॉस्ट हो गई 1500. फिर यहाँ पे एक मशीन रहेगी, मोटर, 1 मोटर, उसकी कॉस्ट सपोज 2000. फिर ये जो बार है, राइट, 1 पाइप, सपोज एग्जांपल 200 रुपए. ये जिसने असेंबल वगैरह किया होगा, उस पर काम किया होगा, वेजेस, उस बंदे के वेजेस और 500 रुपए. एंड बाकी चीजें ऑयल वगैरह यूज किया होगा, नट बोल्ट्स यूज किए होंगे वगैरह, कंज्यूमेबल्स, सपोज 300 रुपए. सो ये एक फैन बनाने की कॉस्ट कितनी हो गई? इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, वेल्डिंग मशीन लगी होगी, समझ में आ रहा है? तो वो सब उसकी कॉस्ट, हमने कॉस्ट ले ली, ढूंढा एक कि कितना लगा वो, इस एक फैन बनाने की कितनी कॉस्ट है. ध्यान देना, एक फैन बनाने की कितनी कॉस्ट है, हमने ढूंढा कि एक फैन बनाने की कितनी कॉस्ट है. सो जनरली मोटा मोटी मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, उसमें बाकी भी चीजें रह सकती है जो अभी आपको समझेगी भी नहीं, बट एक मोटा मोटी समझ लेना है फैन बनाने की. दिस इज राइट 1500, 3500, 3700, 4000, 4500, प्लस ही विल एड हिज प्रॉफिट, 500 रुपए प्रॉफिट. और वो बोलेगा इसकी प्राइस मार्केट वो कितने में सेल करेगा, 5000 में. तो बोलेगा इस फैन की प्राइस 5000 रुपए है. क्या बोला उसने? फैन की प्राइस 5000 रुपए है. सो हमने क्या किया, ये फैन मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें जो जो चीजें लगी वो सबकी हमने एक एडिशन ले ली और बोला ये फैन 5000 का है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज कार्डिनल इकोनॉमिस्ट एज्यूम्स कि प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट incurred to produce them, to provide them. आप ट्रैवल करते हो ओला से, आउट स्टेशन जाते हो तो रेट होता है 15 रुपए. क्यों? ये 12 रुपए क्यों? उसमें पेट्रोल का ऐड किया जाता है, राइट, वो ड्राइवर का लंच वगैरह उसमें ऐड होता है, मतलब सब चीजें ऐड होती है. बोलते 12 रुपए पेट्रोल रहेगा, रेट रहेगा 12 रुपए पर किलोमीटर ट्रैवल. वो जो रेट निकल है 12 रुपए, उसमें उनका पेट्रोल की कॉस्ट रहेगी, वो आपसे पेट्रोल कॉस्ट नहीं लेते. प्लस ड्राइवर का लंच वगैरह रहेगा, या बोलते हैं ये 12 में लंच नहीं है, सो उन्होंने बोला 12, राइट, पेट्रोल रहेगा. एक डेप्रिसिएशन कंसेप्ट रहती है जो आप भी नहीं समझेगी, वो रहेगा, राइट. एसी की चार्जेस रहेंगे, एसी यूज करने के वगैरह, ऐसे सब चार्जेस ऐड करके डिवाइड बाय टोटल किलोमीटर्स, जर्नी के टोटल किलोमीटर्स, 12 रुपए रेट आ गया पर किलोमीटर. इफ यू ट्रैवल 1 किलोमीटर यू हैव टू पे 12 रुपीज. If you travel 100 kilometers, you have to pay 1200. If you travel 1000 kilometers, you have to pay 12,000. जो रेट है वो रेट ढूंढा कैसे आपने? By adding up all the cost. So classical economist assumes that, ध्यान देना, क्लासिकल, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको जो मैं अभी बोल रहा हूँ. Classical economist assumes that prices of goods and services is calculated by adding up the cost incur to manufacture product or provide them, manufacture or produce the product or provide the services. इस मोबाइल की कॉस्ट क्या रहेगी? इसके लिए जो जो चीजें लगी, जो जो खर्चे किए इस मोबाइल के लिए, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप आपके घर की वैल्यू निकालते हो, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सीमेंट लगेगा, कितना सीमेंट लगा वो ऐड करो,
ब्रिक्स लगेंगे, सैंड लगेगी, वाटर लगेगा, राइट। फिर लेबर काम कर रहे होंगे, राइट। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी, कितने सारे फर्नीचर लगेगा, स्टील लगेगा। आप सोचो ना कि क्या क्या लगेगा। आपको डिगिंग करना पड़ेगा, राइट, बेस के लिए, वो फाउंडेशन बनाने के लिए, स्लैब डालने के लिए। फिर आप उसमें पीओपी करोगे, उसकी कॉस्ट अलग। आप टॉयलेट बनाने के लिए वो सब वेसल्स वगैरह लगेंगे, किचन वगैरह के लिए वो सब, उसकी कॉस्ट अलग। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें जितना खर्चा हुआ सब ऐड करो और आप बोलते हो ये मेरे घर की वैल्यू है। आपने कितना डाला वो बनाने के लिए, आपके जेब से कितना गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। एंड आप उस पर प्रॉफिट ऐड करके सेल करोगे। हम बोलते हैं ना, कोई भी सेलर कमोडिटी जब सेल करेगा तो उसकी कॉस्ट तो रिकवर करेगा, बोलते हैं ना। एग्जाम्पल, लड़कियां जो जनरली ज्यादा बार्गेनिंग करती है, वो जाती है और बोलती है कि भैया मुझे ये टॉप लेना है। वो बोलता है 1000 का है। लड़की बोलती है 100 रुपए दूंगी। वो बोलता है 100 कैसे चलेगा, 800 में देता हूँ। लड़की बोलती है 200। वो बोलता है 600 में देता है। लड़की बोलती है 300। वो बोलता है 500 के नीचे नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरी कॉस्ट ही 500 है, 500 के नीचे नहीं दे सकता। सो उसने बोला कि उसको ही 500 मिला है, वो कैसे देगा 500 के नीचे। देखो मैं आपको समझा रहा हूं थ्रू योर एग्जांपल। वो कैसे आपको 500 के नीचे देगा, वेरी कॉमन सेंस। वो देगा ही नहीं, नहीं तो वो लॉस में जाएगा रे। तो फिर लड़की बोलती ठीक है 550 600 में लड़की लेती है। बोलता है मुझे थोड़ा रखो ना मेरे लिए, 10 15 100 रुपए। तो लड़की बोलती है 600, और 600 में डील डन हो जाती है। सो जब उसने बोला ये मेरा 500 का प्रोडक्ट है, मुझे ही 500 मिला, तो उसने बोला मैं यहाँ पे लाने के लिए मुझे 500 रुपए लगाए, उसने मैंने परचेस किया, यहाँ पे लेके आ गया वगैरह, सब कॉस्ट मिला के 500 है, मुझे 100 रुपीज रहने दो, आप 600 में लो, मुझे भी धंधा करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वो 600 में डील होती है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट टॉप? 600 includes all those costs incurred to bring that top into the market. मार्केट में लाने के लिए जो जो कॉस्ट लगे सब उसमें इंक्लूड है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट assumes that the price of goods and services is what the cost incurred to, right, bring them to the market. And न्यू क्लासिकल बोलते नहीं, प्राइस ऐसे नहीं ढूंढी जाती। they assume that prices of goods and services is what, right, prices of goods and services is what, लिखो जल्दी लिखो, हम 1 मिनट रुक रहा हो, जल्दी करो, लिखो। right, is what prices of goods and services is the price perceived by, is the price, लिख लेना, is the price, right, perceived by, right, or prices of goods and services, right, from the perception of, from the perception of, this is more appropriate, from the perception of consumer or buyer। वो बोलता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमी सेज कि हम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये नहीं मानेंगे कि ये फैन 5,000 का है, हम ये नहीं मानेंगे इकोनॉमिक्स में। हम मानेंगे कंज्यूमर ये कितने का बोलता है। अगर कंज्यूमर बोलता है ये फैन बहुत अच्छा है, इसकी वैल्यू 7,000 होनी चाहिए, 7,000 होता तो भी मैं लेता, तो उसकी वैल्यू 7,000 मानी जाएगी, ना कि 5,000। कंज्यूमर बोलता बहुत खराब फैन है, ये 2,000 के भी लायके का नहीं है, तो इसकी वैल्यू 5,000 नहीं 2,000 मानेंगे। कौन? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एक मूवी देख के आते हो, मूवी है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। यू आर वेरी
होपफुल मूवी जबरदस्त रहेगी, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, राइट, कैटरीना है, कैटरीना थी ना, आई डोंट नो, हाँ कैटरीना थी शायद से, ये सब लोग मूवी में भरे, स्टार स्टडेड मूवी है। आप बोलते हो पहले 500 500 टिकट रहेगा तो मैं मूवी देखूंगा, तो योर परसेप्शन इज मूवी इज वर्थ ऑफ ₹500, मतलब ए टिकट इज वर्थ ऑफ ₹500। उस उसका एक्चुअल टिकट क्या वो जाने दो, आपको क्या लगता है, व्हाट यू आर रेडी टू पे, दैट इज द वैल्यू कंसिडर्ड एज ए प्राइस, राइट, प्राइजेस बाय द न्यू क्लासिकल। सो आप बोलते हो 500 की मूवी है, एंड जब मूवी देख के आते हो बोलते हो यार ये ₹0 की मूवी है, फ्री में भी नहीं जाएंगे, इतनी थर्ड क्लास मूवी है। साहो, राइट, जीरो, ये मूवीज के मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। रेस 3 ट्रेलर या उसके पहले लगता है बहुत जबरदस्त मूवी रहेगी, जब मूवी रिलीज होती है तो पता चलता है मूवी की वैल्यू ही नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो टिकट आपने पेड किया ₹300, दैट वैल्यू इज एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स, बट आप बोलते हो नहीं यार 300 की भी लायकी की मूवी नहीं, ₹100 के लायकी की मूवी है, या बाहुबली जैसी मूवी देख के आते हो, नहीं यार 300 नहीं 500 होता तो भी मैं देखता। So what you assume, what is your perception is the actual value is, ऐसे कौन मानते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं, कौन मानते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बिकॉज ये हम ह्यूमन नेचर स्टडी कर रहे हैं। मेरे लिए देखो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि, ध्यान देना, देयर आर सम फैंस ऑफ सलमान खान who are ready to pay 500, actual ticket is 300, they are diehard fan and they also like race 3 and they are ready to pay 500, but there are practical persons like me जो ₹100 में भी डिस्काउंट मिलेगा तो ले लेगा उस मूवी के लिए। So there are some customers who say value is 500, there are some customers who say value is 100. So ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो वैल्यू है ना, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस चेंजेस विद द चेंजेस इन द पर्सन, बट ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो वैल्यू होती है इट रिमेन्स सेम, तो लिख लेना, राइट, इनकी वैल्यू चेंजेस विद द चेंज इन द कस्टमर एज कंज्यूमर चेंजेस। यहाँ पे वैल्यू रिमेन सेम फॉर ईच कंज्यूमर, सबके लिए प्राइस सेम रहेगी, वैल्यू इज सेम फॉर ईच कंज्यूमर। आप कोई भी आओगे तो बोलते हो 5,000 का फ्लैन है, वो बोलता है नहीं यार ये 3,000 का है, एक कोई बोलेगा 3,000 का है, कोई बोलेगा 5,000 का है, कोई बोलेगा 7,000 का है। हर एक की वैल्यू, देखो वैल्यू अलग अलग है। एग्जाम्पल, टेथिस्कोप इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर, जो मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए बहुत यूजफुल है, कॉमर्स वाले के लिए उसकी वैल्यू 0 है, कमोडिटी वही है, यू कैन गो एंड बाय एट सपोज 5,000, वो 5,000 में परचेस कर सकते हो, उसकी क्लासिकल वैल्यू, इकोनॉमिक्स के क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से उसकी वैल्यू 5,000 है, बट मेडिकल वाला बोलता है यार ये इतना यूजफुल है, इसकी वैल्यू 10,000 होती तो भी मैं लेता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फनी वे, आई डोंट नो हाउ विल यू टेक। आपने मुझसे शादी करो की मूवी देखी है? उस मूवी में, इट्स गुड मूवी, टाइम पास मूवी है, उसमें जैसे अक्षय कुमार की एंट्री होती है एंड सामने वाले फ्लैट पे उसके राइट बालकनी के सामने फ्लैट में प्रियंका चोपड़ा रहती है, एंड वो क्या बोलता है उसका सेंटेंस, इफ यू रिमेंबर, ट्राई टू कोरिलेट, मूवी देखते हो तो थोड़ा समझो उसमें से वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि अगर इसका रेंट दुगना भी होता तो भी मैं हंसे हंसे देता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वहां से जम करता है नीचे और उसको परेश रावल मिलता है, परेश रावल नहीं, वो राम, वो यादव, छोटा वाला यादव, राइट। सो इफ यू रिमेंबर, जिन्होंने मूवी देखी, ट्राई टू लिंक, ठीक है। सो वो जो दिखाया ना कि वो देखता है प्रियंका चोपड़ा को एंड बोलता है इस मूवी को अगर इस रूम के लिए मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी रेंट देने को रेडी होता। सो भले ही द लैंडलॉर्ड इज टेकिंग सपोज 5,000 रेंट फ्रॉम हिम,
बट अक्षय कुमार इज रेडी टू पे 10,000, 15,000, 20,000. So अक्षय कुमार की वैल्यू from his perception is a different. From Salman ke perception it may be different in that movie. From the landlord's perception it may be different. मैं वही समझा रहा हूँ. So वो जो example है that is like neoclassical example कि I am ready to pay even more because I think it gives me that much value. जो चीजें आपको ज्यादा वैल्यू देगी, वैसे मैंने बोला टेथोस्कोप डॉक्टर के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उसकी वैल्यू कम रहेगी. सो कमोडिटी वही है, बट परसेप्शन हर एक का अलग अलग है. सो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट विच इज वेरी कॉमन, सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, फिर आए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और फिर आए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, केन्स वगैरह एग्जांपल. लॉर्ड जेम केन्स, मैंने बोला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट इज लॉर्ड जेम केन्स. हिज कंट्रीब्यूशन इज immense contribution to the economics, a great person. His theory is right literally followed by every country, every finance minister follows his theory, you can imagine. So neoclassical ने सोचा कि जो प्रोड्यूस करते हो वो तो वैल्यू है, बट कस्टमर क्या रेडी है पे करने के लिए, दैट इज द थिंग. वैल्यू इज सेम फॉर ईच कंज्यूमर. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. आगे देन अब ध्यान देना, यहां पे लिखा भी है कहां पे एग्जांपल्स, आई विल गो थ्रू दैट. क्लासिकल स्कूल देखो यहाँ पे, डू यू नो क्लासिकल स्कूल्स में एडम स्मिथ आता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. डेविड रिकार्डो, इसकी थ्योरी योर एफआई बीकॉम में, राइट. डेविड रिकार्डोस रेंट थ्योरी, वो यू विल लर्न इन एफआई बीकॉम, राइट. JS Mills वगैरह वगैरह, दे आर क्लासिकल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर देम. एडम स्मिथ तो आपको वैसे भी याद रहेगा बिकॉज राइट हिज नेम इज अ prominently taken for the classical economist. Neoclassical economist में अल्फ्रेड मार्शल, इसके लॉज हमें स्टडी करने, अल्फ्रेड मार्शल के. पिग एंड फिशर, ये दे आर मोर इन योर 12th, दे आर मोर इन योर 12th तो पूरा इन तीनों पे. ठीक है. मॉडर्न स्कूल अभी जो रिसेंट वाले आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, राइट. जेम केन्स, लॉर्ड जेम केन्स, रॉबिन्स एंड सैमुएल्सन्स. अगेन इनका ज्यादा स्टडी आपको 12th में, मतलब 11th में भी है, बट इन डिटेल स्टडी 12th में, उनके प्रॉपर लॉज राइट आर इन 12th. सो इसमें से आपको एडम स्मिथ याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल को याद रखना है, जीएम केन्स को याद रखना है. ठीक है. देन सो नाउ एवरीवन हैज गिवन देयर ओन डेफिनेशन. एवरीवन, तीनों लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दी है. लाइक क्लासिकल वालों ने इकोनॉमिक्स की अलग डेफिनेशन दी है, न्यू क्लासिकल वालों ने अपनी डेफिनेशन दी है, एंड मॉडर्न वालों ने अपनी डेफिनेशन. बिकॉज इट इज ए ह्यूमन बिहेवियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज चेंजिंग एज द टाइम इज चेंजिंग. And therefore, we have to study 3 definitions from the 3 sciences or 3 thought of schools or school of thoughts. So, लिख लेना definition of economics. Everyone, definition of economics. Of economics. As we are in India, to consider our literature as well, हम कौटिल्य की भी थ्योरी सीखते हैं, लाइक चाणक्य. एक्चुअली इंडिया में इसलिए, ठीक है, सो दैट इज एक है राइट कौटिल्य थ्योरी, अर्थशास्त्र दैट इज, और चाणक्य, उसको चाणक्य भी बोला जाता है राइट ना. He was a legal advisor, financial consultant of the Maurya, right, Maurya Empire. So ये हम इंडिया में इसलिए स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ. लिख लेना
एडम स्मिथ, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले क्लासिकल आ गए, उसके बाद न्यू क्लासिकल आ गए, उसके बाद मॉडर्न आ गए, ठीक है। एडम स्मिथ, he has given definition. His definition is wealth oriented, economics as a wealth oriented, इसकी definition wealth oriented है। He says creation of the wealth, he sees economics as a creation of the wealth। wealth मतलब property, so human wants to create the wealth, nation wants to create the wealth, firm business wants to create the wealth, that process is economics। That if we study that process, we are studying the economics, is process of wealth creation, wealth oriented definition, and that is given in, right, Wealth of the Nations book, Wealth of Nation, published in 1776। वेल्थ ऑफ द नेशन, नाम बहुत बड़ा है बट आपको खाली याद रखना है वेल्थ ऑफ द नेशन। उसने बुक पब्लिश किया था 1776 में, किसने? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हिज बुक वाज वेरी फेमस, आपके बहुत जगह पे रेफरेंस भी आएगा। वेल्थ ऑफ द नेशन पब्लिश्ड इन 1776। उसमें उसने जो डेफिनेशन दी थी, ही हैड गिवन द डेफिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेल्थ। देन उसके बाद आए न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दे आर, इसमें से लीडिंग हमें किसकी डेफिनेशन स्टडी करनी है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, राइट, हिज डेफिनेशन इज वेलफेयर ओरिएंटेड। वो बोलता है इकोनॉमिक्स लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमें वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द नेशन, उस एंगल से हमें इकोनॉमिक्स स्टडी करना है। वो बोलता है इकोनॉमिक्स डील्स विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। His definition is more appropriate than the, right, Adam Smith के, because Adam Smith ने 1976 में definition दी थी। Over a period of time, right, the technology changed, the ways of doing business changed, human nature changed, and obviously economics got evolved. So इसकी definition is more, you can say, wider as compared to Adam Smith's one, ठीक है, right, welfare oriented. And this definition is given by him in Principles of Economics, published in 1890। 1890 में उसने एक बुक पब्लिश किया, that book is called as, right, Principles of Economics। You have to remember, because true or false के लिए, right, fill in the one blanks उसके लिए important है। एंड याद रखने से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये जो मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ ना, जो ये बैकग्राउंड कोई नहीं देगा। आई डोंट नो आपके कॉलेज स्टार्ट हुए नहीं हुए, राइट, वी विल कीप ए पर्सनल मीटिंग, एक दिन हम सब बात करेंगे, नॉर्मल, एक नॉर्मल मीटिंग रहेगी इस वीक में। आई विल आस्क मैम के टाइम के हिसाब से, सो राइट, हमें भी पता चले एक्चुअली आप लोग कौन हो, बिकॉज हम खाली लेक्चर्स कर रहे, मुझे भी नहीं पता आप लोग कौन हो। तो क्या होता है कि एक इंटरेक्शन होना चाहिए। सो अगर आप आपके सीनियर बैच देखोगे, वी टॉक ऑन डेली बेसिस, बहुत हमारा बाकी भी चीजों पर बहुत डिस्कशन होता है, शेयर्स के रिलेटेड, लाइक यस्टरडे, राइट, एक दो दिन पहले पेटीएम वाज बैंड ऑन गूगल प्लेटफॉर्म। अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने उनका एक ऐसे ही लेक्चर ले लिया कि क्या एक्चुअल में क्या होता है, आपका मतलब क्या, क्यों बैन किया, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस। इट इज आउट ऑफ द स्टडी, बट दैट इज, यू मस्ट नो द प्रैक्टिकल। वही मैं बोल रहा हूँ, मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो आप खाली मार्क्स में रहोगे, बट दिस पेंडेमिक हैज लाइक टॉट यू दैट यू नो, राइट, जॉब कभी भी मिल सकता है, कभी भी जा सकता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज स्किल्स, राइट। मुझे बहुत
मतलब इस पेंडेमिक में आई लर्न मेनी थिंग्स न्यू, बहुत सारी चीजें मैंने नई सीखी बिकॉज वी हैड अ टाइम. Develop the skills, that is the most thing. Always remember whatever you learn, try to learn something. पढ़ने के लिए मत करो कि मार्क्स के लिए मत करो. Then the last is modern economist. थोड़ा अक्टूबर होने दो, अक्टूबर के बाद आई विल आल्सो स्टार्ट टीचिंग यू शेयर्स एंड एवरीथिंग. कैसे, हाउ वी ट्रेड, कैसे हम प्राइस फोरकास्ट करते हैं वगैरह. आई विल बी वो नवंबर दिसंबर में, राइट, तब मेरा 12th कंप्लीट हो जाता है, 12th का सिलेबस पूरा हो जाता है, नवंबर में हो जाता है, 12th से फाउंडेशन हो जाता है. तो आई एम रिलैक्स्ड. तो उस टाइम में आई फोकस मोर ऑन अदर एक्टिविटीज एज वेल. अपना तो सिलेबस चलेगा, स्पीड में भी रहेगा, उसके साथ ऑन सैटरडे संडे आई विल बी टेकिंग एक्स्ट्रा लेक्चर्स. तो वो चीजें आपको एक एज ए ह्यूमन और एज ए, क्या बोलते हैं उसको, एज ए मैन, आप फ्रॉम बॉयज टू मैन जो बोलते हैं ना, यू आर ए मैन, मतलब यू नो समथिंग, वो आपको ग्रो करेगा. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, लाइक मैंने बोला था, राइट, इसमें रॉबिन्स, उसकी डेफिनेशन हमें स्टडी करनी. हिज डेफिनेशन इज रिलेटेड टू, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ये वाला डेफिनेशन, लॉ ऑफ स्कैरसिटी. इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन दिस. सो राइट, ये वाले डेफिनेशन, लॉ ऑफ स्कैरसिटी लिखो, राइट. हिज डेफिनेशन इज related to scarcity, right. His definition is based on scarcity oriented. ठीक है, there is no book, right, as such बोल रहा हूं. ठीक है, so अब हम एक एक देखते हैं. ठीक है, so मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया. now come to the टेक्स्ट बुक. I think you all have purchased टेक्स्ट बुक्स. अगर नहीं है तो go and purchase. आज ना कल परचेस करनी ही करने. एंड बुक्स आर नॉट दैट मच कॉस्टली, 80, 90, 100 रुपीज के बुक्स रहेंगे. ठीक है, अब देखो क्या है. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स. ठीक है, ध्यान देना, राइट. 20-25 मिनट्स आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस. इट इज नॉट नेचुरल साइंस, इट इज ए सोशल साइंस. द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, right, the term economics lies in the Greek word. Many words, जो रैगनर फ्रिश था जिसने ये टर्म्स यूज किए, ही, राइट, वो ग्रीक पर्सन था. तो उसने जो टर्म्स यूज किए ना वो इकोनॉमिक्स में आए. सो मेनी थिंग्स, मेनी वर्ड्स इन द इकोनॉमिक्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक. मैक्सिमम वर्ड्स इन द इकोनॉमिक्स आर ग्रीक वर्ड. देयर ओरिजिन लाइज इन द ग्रीक, right, lies in the Greek word, right, economia. अभी आपको याद रखना पड़ेगा और स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए. ट्रू और फॉल्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वन सेंटेंस के लिए. इसलिए इकोनोमिया, जिसका ये दिस इज ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. हम हमारे घर को कैसे मैनेज करते हैं, वी डिसाइड व्हाट आर आवर नीड्स, हम हमारे वांट्स डिसाइड करते हैं. लाइक योर पेरेंट्स प्रायोरिटी इज योर एजुकेशन. सो बाकी सब चीजें अवॉइड करेंगे बट आपके एजुकेशन पे ध्यान देंगे. एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोल रहा हूं. सो दे हैव डिसाइडेड देयर नीड्स, वांट्स. वो उनके लिए कुछ नहीं लेंगे बट आपके लिए पहले बुक्स लेंगे, पहले आपके ट्यूशन फीस पे करेंगे, बिकॉज दे नो यू आर देयर फ्यूचर एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन यू. सो देयर प्रायोरिटी इज यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ यू मैनेज योर हाउस, हाउ यू मैनेज योर फाइनेंस. आप आपके घर को कैसे संभालते हो, इट इज राइट. वहां से आप आपके फर्म को कैसे संभालोगे, आप आपके स्टेट, आपके नेशन को कैसे संभालोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज द रूट, द ओरिजिन लाइंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. सो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, राइट, ओकोमनिया, जो कोई भी उसका प्रोनाउंसिएशन वो ग्रीक प्रोनाउंसिएशन है, which means management of the household. This is VIMP for MCQ. Then economics is referred as queen of social sciences. Queen of social sciences by Paul Samuelson.
बाय पॉल सैमुएल्सन। ये भी नाम बहुत बार आएगा, पॉल सैमुएल्सन। इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। हमारे इनकम के रिलेटेड, हमारे कंजम्पशन के रिलेटेड, हमारे सेविंग्स के रिलेटेड, हमारे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, हमारे डिमांड के रिलेटेड, हमारे सेटिस्फैक्शन के रिलेटेड इकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है। इट डील्स विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग्स satisfy unlimited wants with limited resources। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स का रूट है अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, मींस रिसोर्सेस, ठीक है, ध्यान देना। सो ये लास्ट लेक्चर में मैंने तो लॉ ऑफ स्कैरसिटी गिवन बाय रॉबिन्स, वो रॉबिन्स ने दिया था कि यस कि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। हाउ वी विल डिसाइड, how we, it depends on your priority। like joining tuition is your priority, you want to become something in your life and therefore you are taken admission, you are looking for the classes, you are studying, it is your priority। so whatever जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी आपका एजुकेशन है, इसलिए राइट वो बाकी सब चीजें बाजू रख रहे हैं, बट राइट जो क्या खाली आपका एजुकेशन उनकी वांट है, देयर आर मेनी वांट्स, बट उसमें से उन्होंने प्रायोरिटी किया आपका एजुकेशन। Your priority is gaining the knowledge and therefore you are here। Try to understand। मार्क्स के लिए नहीं हो, मार्क्स तो मिलेंगे, नॉलेज है तो मार्क्स आएंगे। So you have also decided you want to watch IPL, you want to watch movie, you want to play games, उसमें भी आपने 1-1.5 घंटा टाइम निकाला है for the class। So it shows it's your priority। So there are multiple wants, right? But data तो same है, 2 GB या 3 GB डेटा रहेगा डेली, उसमें से यू आर कंज्यूमिंग समथिंग फॉर योर लेक्चर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे, उसमें आपने डिसाइड किया नहीं लेक्चर्स हमें सिंसियरली करने। सो मैं वही समझा रहा हूं आप लोगों को, ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेस। आगे सो इट डील्स विथ, देखो क्या लिखा है, इट डील्स विथ राइट हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। आपके पास 2 GB डेटा है, 3 GB डेटा है, हाउ विल यू यूज डेली ना, तो आप उसको कैसे यूज करोगे ये आपकी मर्जी है। एंड देन यू डिसाइड द प्रायोरिटी। आपके पास चार्जिंग, आप ट्रैवल में हो, बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप ट्रैवल में हो और बैटरी 20% है, ये आपको दिन भर ट्रैवल करना है, आपने सुबह फुल चार्ज करके रखा है, यू डोंट हैव बैटरी बैकअप, राइट, लाइक आपके पास पावर बैंक नहीं है। हाउ केयरफुली यूज योर बैटरी थ्रू आउट द डे। आप डेटा बंद करोगे, अननेसेसरी सॉन्ग्स नहीं सुनोगे, डेटा चालू नहीं रखोगे, बट डेटा कंज्यूम बैटरी, आप बहुत सारे एप्स बंद करोगे। aren't you using your 100% लिमिटेड बैटरी, राइट? एंड यू आर, आप उन्हीं चीजों के लिए कर रहे हो जो यूज है। जब आपको एक्चुअल में कुछ किसको व्हाट्सएप वगैरह देखना होगा तभी आप डेटा चालू करोगे, बिकॉज यू नो थ्रू आउट द डे यू वोंट गेट ए चांस टू रिचार्ज योर बैटरी, बिकॉज यू आर लिमिटेड बैटरी नाउ। पूरे दिन आप बाहर हो और आपके पास बैटरी बैकअप कम लिमिटेड है। सिंपल एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा ना आपको कि जो आपके रियल लाइफ के रिलेटेड रहे। भाई आप घर पे बैठे हो, 24 घंटे लाइट है, आप फर्क पड़ता है क्या? आप कुछ भी देखते हो, बिकॉज आपको पता है लाइट हम लगा सकते हैं, तब वो रिसोर्स इज अनलिमिटेड। सो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, हाउ यू विल यूज दैट बैटरी टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स। तो आप बोलते हो आज क्या मूवी नहीं देखी, ट्रैवल में चलेगा, गाने नहीं सुने तो चलेगा, बैटरी बैकअप लगेगा मुझे, राइट, बैटरी रहनी चाहिए, घर वाले फोन करेंगे, कुछ काम रहेगा, इसके लिए आप प्रायोरिटाइज करते हो। वही तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, प्रायोरिटी सेट करना। देन आगे लेट अस अंडरस्टैंड डेफिनेशंस। आई विल गो थ्रू क्विकली, ध्यान देना। कौटिल्यस व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। सो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र दिया है, राइट, दैट इज साइंस रिलेटेड टू द क्रिएशन एंड मेंटेनिंग द वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करना और वो मेंटेन भी करना। अनिल अंबानी जैसे नहीं कि he was 6th richest person once upon a time in the world and today his net worth is negative, he is on a verge of bankruptcy। ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट, अनिल अंबानी मुकेश जैसे होना चाहिए, राइट, you should keep on increasing your wealth। so economics deals with that, right? अर्थशास्त्र implies science of acquiring and managing the wealth, acquiring and managing the wealth, right? Essentially, right, Arthashastra is a
राइट, इसे इसका मतलब है, राइट, इसका मतलब है थीसिस, ठीक है। सो अर्थशास्त्र इज ट्रिटाइज और थेसिस पता है ना आपको, लिटरेचर, राइट, ऑन political economy in its broadest sense. It is a right literature, right, मराठी में ग्रंथ बोलते हैं उसको, या हिंदी में ग्रंथ बोलते हैं. इट इज अ थेसिस, right, which is used. Theses are like literatures on a particular subject. So we have to understand it is अर्थशास्त्र. So key points based on Kautilya's views. ध्यान देना, key points based on Kautilya's views. First, crucial role of the state. Economics helps, right. उसने बोला, उसने अर्थशास्त्र में बोला कि state means government has a crucial role. State means or government has a crucial role in managing the, like, the country or managing the empire. So government has crucial role. Then focus on creation of the wealth as means to ensure welfare of the society. उसने बोला the government should focus on creation of wealth, because अगर wealth है तो human welfare रहेगा. Then he said need for efficient administrative machinery for good governance, right. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए which will look after particular area. So उसने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए. राजा रहेगा, उसके उसके सेनापति रहेंगे, एक उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म रहेगा. डिफेंस एक देखेगा, एक होम मिनिस्टर, लाइक जैसे अपना अभी देखोगे, राइट, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली. डिफेंस के लिए अलग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अलग, होम मिनिस्टर अलग, एजुकेशन मिनिस्टर अलग, विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर अलग, हर एक को एक एक काम दिया है. सो देयर इज इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट. सो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए फॉर गुड गवर्नेंस एंड कंपाइलेशन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. सो कैसे, राइट, वो आपने राज्य करना चाहिए या कैसे आपने स्टेट को मॉनिटर करना चाहिए, चलाना चाहिए, उसके रिलेटेड आइडियाज है. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. आगे डेफिनेशन, राइट, गिवन बाय एडम स्मिथ. डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, ध्यान देना. एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ was a classical economist. Classical economist Adam Smith, also regarded as father of economics. So right, fill in the blanks के लिए father of economics is Adam Smith, has given the wealth oriented definition of the economics. Out of his many uh, literary contributions to the economics, he is most famous for his 1776 piece of work, an inquiry into the nature and the causes of wealth of the nations. मैंने आपको लिखा है, लिख के दिया wealth of the nation, इतना भी लिखा तो भी चल जाएगा. An inquiry into the nature and the causes of wealth of the nation. What is it? What constitutes wealth of the nation and what are the causes of the wealth of the nation? Adam Smith defines economics as science of wealth. तो यहाँ पे लिख लेना अपने टेबल में. He defined economics as science of wealth. Economics as science of wealth. Science of wealth. देखो क्या लिखा है उसने, ठीक है. Key points of the Adam Smith definition. Laissez-faire policy. Actually, this is also a Greek word. Laissez-faire policy मतलब क्या? Laissez-faire policy मतलब free economy. Free economy. Laissez-faire policy is means free economy. मतलब गवर्नमेंट रहेगी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट रहेगी, बट गवर्नमेंट आपको फ्री हैंड देगी. आपको जो करना है करो, प्रोड्यूसर्स को जो प्रोड्यूस करना है करो, बायर्स को जो परचेस करना है करो. गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी. एग्जांपल ध्यान देना, बहुत सिंपल एग्जांपल है. यूएस में वहां पे गवर्नमेंट इज नॉट इनटू बिजनेस,
गवर्नमेंट खाली रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। इंडिया में एग्जांपल पेट्रोल प्राइसेस आर मार्केट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती लाइक लेकिन गैस सिलेंडर के प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? गैस सिलेंडर के प्राइसेस गवर्नमेंट ना। तो कहने से कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, यस। सिलेंडर के केस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। राशन वगैरह उसके केस में कौन प्राइसेस डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के केस में शुगर वगैरह उसके प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है मार्केट में। रेलवे कौन चलाता है? गवर्नमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीएसएनएल गवर्नमेंट का है, ओएनजीसी गवर्नमेंट का है, इंडियन पोस्ट बाकी कुरियर सर्विस के साथ गवर्नमेंट का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट टेक्स पार्ट इन द बिजनेस इन इंडिया। सो अगर ऐसे है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो इट इज नॉट ए फ्री इकोनॉमी। गवर्नमेंट खाली देखती है, कुछ करती नहीं इन द सेंस दे जस्ट प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड, दे डोंट डू, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू द बिजनेस। दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू बिजनेस। उनको बिजनेस करने की क्या जरूरत है? उनको रेगुलेट करना है कंट्री को। दे शुड नॉट एंटर इनटू सेलिंग बुक्स, सेलिंग, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन में गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट है, हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट है। बिकॉज अगर वो पूरे सर्विसेज प्राइवेट के पास जाएंगे तो प्राइवेट विल स्टार्ट चार्जिंग एनी प्राइस। पुअर कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, पुअर्स कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ सर्विसेज अगर गवर्नमेंट उसमें काम नहीं करेगी इंडिया में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए गवर्नमेंट भी उस सेक्टर में है, उस बिजनेस में। ऑटोमिक सेक्टर में गवर्नमेंट है बिकॉज वो बहुत प्रायोरिटी सेक्टर है इंडिया के लिए। प्राइवेट को देखे चलेगा नहीं। रेलवे में गवर्नमेंट है, इसरो वगैरह गवर्नमेंट काम कर रही है, रिलायंस वगैरह नहीं काम कर रही है। बट टेलीकॉम में रिलायंस भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है थ्रू बीएसएनएल। एजुकेशन में राइट, प्राइवेट प्लेयर्स भी है। हम तुम लोगों ने भी स्कूल खोल के रखे, गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट स्कूल है। हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। तो इंडिया में अगर ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सब प्राइवेट ओरिएंटेड है, सब गवर्नमेंट बोलती है राइट, बायर्स विल डिसाइड क्या बाय करना है, सेलर्स विल डिसाइड क्या सेल करना है। हमारा कोई काम नहीं। प्राइजेस आप आपके देखो, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम खाली देखेंगे कुछ अनइथिकल नहीं हो रहा है, हम खाली मॉनिटर करेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। ऐसे इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी बोला जाता है। ऐसे इकोनॉमी जैसे यूएसए इज अ फ्री इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोला जाता है। कैपिटलिस्टिक नाम सुना होगा कभी। यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यूके राइट इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ऑन द कंट्री चाइना में एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, रशिया में एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हर चीज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इंटरवीन करती है छोटी छोटी चीजों में। यू कैन नॉट यूज गूगल, यू कैन नॉट यूज फेसबुक, ये चाइना के रूल्स है, उनके ही सर्च इंजन यूज करना है। आपको आप क्या पढ़ोगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप क्या प्रोड्यूस करोगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप क्या कंज्यूम करोगे गवर्नमेंट डिसाइड करती है एवरीथिंग। लाइक एग्जांपल तारे जमीन पर मूवी देखिए। तारे जमीन पर मूवी में क्या दिखा है? पेरेंट्स शुड नॉट इंटरवीन राइट इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, और उसको जो इंटरेस्ट है वो उसको करने दो, उसको टोको मत। दैट इज फ्री इकोनॉमी, फ्री हैंड दे दो उसको। दैट इज एन कैपिटलिस्टिक। एंड वही आमिर खान की दंगल मूवी, उसमें वो पेरेंट है और उन बच्चों को वही करने को बोलता है जो उसकी चाहत है। तो दैट इज लाइक सोशलिस्टिक। वो फ्री इकोनॉमी नहीं है, उसमें उसका इंटरवेंशन है। उन लड़कियों को खेलना भी नहीं होता राइट कुश्ती, फिर भी वो उनको खिलाता है राइट, खेलने को बोलता है खेलो। सो एक एग्जांपल है तारे जमीन पर, जिसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री हैंड। ठीक है, दैट इज कंसेप्ट। देखो सेम एक्टर है उसमें, उसने बोला है कि जो आपको लगता है वो करो, वैसे गवर्नमेंट बोलती है जो आपको लगता है वो करो राइट। दैट इज फ्री हैंड, फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, लेजी फेयर पॉलिसी, लेजी फेयर पॉलिसी। ठीक है, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो एडम स्मिथ ने बोला वेल्थ क्रिएशन, उसने बोला कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन। कौटिल्य ने क्या बोला? गवर्नमेंट शुड इंटरवीन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इसने बोला गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। किसने बोला? एडम स्मिथ ने बोला गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। लोग डिसाइड करेंगे उनको क्या परचेस करना है, लोग डिसाइड करेंगे क्या सेल करना है। एग्जाम्पल, अगर कल जाके
सब लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। जो आजकल न्यूज चैनल पे कुछ भी फालतू दिखाते हैं, अगर वो बंद कर दिया तो न्यूज चैनल अच्छी न्यूज दिखाना स्टार्ट करेंगे। ये बायर्स के हाथ में क्या देखना है क्या नहीं। अगर हर हर लोगों ने देखना बंद कर दिया तो न्यूज चैनल हैज टू चेंज द कंटेंट। उनको एक्चुअल रियलिटी दिखानी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं। बट उनको टीआरपी से रहना है, लोगों को अच्छा लगता है ये सब झगड़े देखना, किसी का घर गिरा रहा है लोगों को अच्छा लगता है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सो क्या देखना है क्या नहीं देखना है आपके हाथ में, इट विल डिसाइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी आईपीएल स्टार्ट होगा, लोग मैचेस देखेंगे इवनिंग में। देखो ये न्यूज चैनल का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा, टीआरपी कम हो जाएगा। अब वो अच्छी बातें बात करना स्टार्ट करेंगे जो लोगों के कंसर्न में, ऐसे नहीं दिखाएंगे मसाला वाला ज्यादा। सो फ्री इकोनॉमी। दूसरा कैपिटल एंड द वेल्थ एक्यूमुलेशन। उसने बोला कैपिटल, कैपिटल मतलब सोर्स ऑफ द फंड्स जिससे आप बिजनेस करते हो। लोगों ने कैपिटल इकट्ठा करना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करनी चाहिए। विदाउट वेल्थ यू कैन नॉट सस्टेन। जो डेवलप कंट्रीज है, एग्जांपल इफ यू नो डेवलप कंट्रीज, उनकी वेल्थ कितनी होगी, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, लॉट ऑफ वेल्थ। एंड इंडिया इज बोरोइंग एंड बोरोइंग एंड बोरोइंग। वी आर डेवलपिंग बट अपने ऊपर उतने लोन्स भी है, heavy loans, heavy loans. So we, right, it is economics related to wealth accumulation, capital accumulation. Nature's law in economic affairs, right? Nature's law in economic affairs, ये बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं समझेगा। Division of labor as aspect of growth theory। उसने बोला लेबर को डिवाइड करना चाहिए, राइट? लेबर डिवीजन होना चाहिए, मतलब एक काम एक बंदे ने देखना चाहिए, दो तीन लोगों ने देखना चाहिए, उससे लेबर स्पेशलाइजेशन आता है। एक काम तीन चार लोग देखते हैं, उन लोगों में बांट लेते हैं, तो उससे क्या होता है। एग्जांपल टीम इंडिया, ओपनिंग में रोहित शर्मा आएगा, मिडल में धोनी आएगा, राइट, विराट धोनी आएगा, राइट, टेलेंडर्स के साथ धोनी खेलेगा। उन्होंने डिवाइड किया उनका वर्क, इसलिए टीम अच्छी परफॉर्म करती है। सो डिवीजन ऑफ लेबर, जो बड़ा काम है ना उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड करो, एंड हर कोई एक एक काम देखेगा और उसमें वो स्पेशलाइज होगा। एमएस इज स्पेशलाइजेशन इन फिनिशिंग द गेम्स, रोहित इज स्पेशलाइज इन, राइट, स्टार्टिंग द गेम्स, कोहली इज स्पेशलाइजिंग इन द मिडल ओवर्स, बुमराह इज अ डेट इन स्पेशलिस्ट। उन लोगों ने उनका उनका काम डिवाइड किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डिवीजन ऑफ लेबर गिव स्पेशलाइजेशन। एक काम अगर अलग अलग हिस्सों में बांटते हो और हर एक एक काम हमेशा वही कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। सो ही टॉक्ड अबाउट, आपको याद इतना कुछ नहीं रखना है, जस्ट पॉइंट्स याद रखो। ही टॉक्स अबाउट फ्री इकोनॉमी, फ्री हैंड। ही टॉक्स अबाउट कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। ही टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इज एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। बोला ग्रोथ तब होगी जब आप काम डिवाइड करोगे एक दूसरे में, एंड उससे क्या होगा कि आउटपुट इफिशियंसी इंक्रीज होगी। इफिशियंसी इंक्रीज होने से आउटपुट इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी। दिस वाज गिवन बाय हूम, राइट, योर अल्फ्रेड एडम स्मिथ इन हिज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। टुमारो आई विल बी टेकिंग ए लेक्चर। अब मैं आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर्स, इकोनॉमिक्स लेक्चर। मैं मिनिमम 2 लेक्चर मिनिमम ले लूंगा एवरी वीक। ठीक है, सो कल मैं आपको टाइमिंग बोल दूंगा। ठीक है, सो कहाँ पे आके रुके हम लोग, आके रुके हैं एडम स्मिथ के यहाँ पे। हमने ये डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, फिर कल हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, एंड देन वी विल डिस्कस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, थैंक यू। किसी के डाउट्स है तो आई कैन टेक दोस डाउट्स। थैंक यू।